forget to like, share and subscribe. Hello students, today we are going to discuss minors and cofactors of matrix as well as determinant. Let A be the square matrix of order 3 by 3 and this is corresponding determinant. Okay. Now we find minors of this matrix as well as determinant. M11 is equal to minor of element of first row and first column, and this is equal to determinant obtained by eliminating first row and first column, means eliminating this and this. So this remaining portion A22, A23, A32, A33. Now M12 is equal to minor of A12, means determinant obtained by eliminating first row and second column. मतलब फर्स्ट रो को हटाना है और सेकंड कॉलम को हटाना है एंड राइट रिमेनिंग एलिमेंट्स A21, A31, इस पूरी रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है और चारों एलिमेंट को लिखना है A23, A33. M13 is equal to minor of A13 is equal to determinant obtained by eliminating first row and third column. So write these four elements A21, A31, A22, A32. Okay, again summary. A11 means फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के सारे एलिमेंट्स को लिखना है डिटरमिनेंट में और उसको सोल्व करना है. A12 मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स को छोड़ना है और बाकी एलिमेंट्स को लिख के सोल्व करना है. अब नाउ C11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर 1+1, जो भी एक के नीचे सफिक्स में नंबर हो 1+1 पोजीशन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो पावर में आ जाएगा और इनटू M11 इज इक्वल टू M11 इनटू डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स M11. C12 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A12 equal to -1 raised to the power 1+2 into M12 equal to -M12. C13 equal to cofactor of A13 equal to -1 raised to the power 1+3 into M13 is equal to M13 because -1 raised to the power 4 plus. Similarly, we can find cofactor of remaining elements A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now summary. C11 is equal to -1 raised to the power 1+1 M11 equal to M11. C12 equal to -1 raised to the power 1+2 M12 is equal to -M12. C13 equal to -1 raised to the power 1+3 into M13 equal to M13, or in general we can write Cij
इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I plus j into Mij, or we can also write Cij, ratio between cofactor and minor, Mij is equal to -1 raised to the power I plus j. If sum of I plus j is even, then ratio between cofactor and minor of any element is +1, and if I plus j is odd, then ratio of cofactor and minor of any number is -1. Now expanding this determinant in terms of cofactors or minors, expand कैसे करते हैं अपन? a11 एक्सपांडिंग अलॉन्ग r1, अगर हम r1 की तरह एक्सपांड करेंगे तो a11 इंटू डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो a22 a23 a32 a33 प्लस नाउ माइनस a12 इंटू डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय a21 a31 a23 a33 plus a13 into determinant obtained by a21 a22 a31 a32. अब now a11, this is actually equal to m11, cofactor of a11, this is cofactor of a11 is denoted by m11 minus m12, this is a11, this is minor of a11 minus a12, this is minor of a12, and this is minor of a13. But m11 equal to c11, so in place of m11 we can write c11. m12, in place of m12 we can write c12 equal to minus m12, तो माइनस साइन उधर आ जाएगा, तो यहाँ रखेंगे माइनस c12, सो माइनस माइनस प्लस, सो a12 इंटू c12 प्लस a13 इंटू c13. So whenever any determinant is given, then solution of this determinant is actually take any row and corresponding cofactor, a11 into cofactor of a11 plus a12 into cofactor of a12 plus a13 into cofactor of a13. We can also take, if we take second row, then answer is a21 into corresponding cofactor a21 plus a22 into corresponding cofactor c22 plus a23 into corresponding cofactor c23. So we can take any row or any column, element into corresponding cofactor, a11 into c11, a21 into c21, a31 into c31. यानी अपन कोई भी अगर रो या कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो corresponding कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलेगी. Write minors and cofactors of the following determinants. Question number 1, del equal to this. Now we have to write minor of each of the elements. There are 4 elements and this is 2 by 2 determinant. So first write minor of 2 in place of m11. It is better give name minor of 2, so there is no confusion. m11 m12. Minor of 2 equal to determinant obtained by eliminating first row and first column. जिस रो और कॉलम में एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट डिटरमिनेंट में लिखना है. अब 3/3 को डिटरमिनेंट लिखना, ओनली सिंगल एलिमेंट है, उस सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट क्या होता है? वही होता है एज इट इज. सो डिटरमिनेंट 3 इक्वल टू 3. आफ्टर दिस माइनर ऑफ -4 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, यानी ओनली सिंगल एलिमेंट 0. ये डिटरमिनेंट का साइन है, मोड का साइन नहीं है.
आफ्टर दिस माइनर ऑफ 0 इक्वल टू डिटरमिनेंट -4 इक्वल टू -4, माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू ओनली सिंगल एलिमेंट 2 इक्वल टू 2। ये डिटरमिनेंट का साइन है, मोड नहीं, ऐसे नहीं कि +4 लिख दिया जल्दी में। अब नाउ कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन चाहिएगा, -1 और रेज टू दी पावर 1 + 1 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और इनटू में क्या आएगा M11 मीन्स डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जिस रो या कॉलम में 2 इसको छोड़ के लिखना है। तो -1 की पावर 1 + 1 कितना आएगा 2, सो -1 की पावर 2, 1 यानी आंसर 3 रहेगा। अब देखो आप ऑब्जर्व, बार बार माइनर ऑफ लिखने बजाय अपन हिंदी में यूज़ करते हैं इस तरह सिंबल, आप यूज़ कर सकते हो। कोफैक्टर ऑफ -4 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 0 इक्वल टू, तो टाइम सेव हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर 1 + 2, इसमें क्या आएगा -1 रेज टू पावर 1 + 3 और -1 रेज टू दी पावर 2 + 1 1 1 A12 A21 और A22 and now write 0 -4 and 2 same values 3 0 -4 2। now simplify, 0 कोई साइन होता ही नहीं, 0 -4 और यहाँ पे माइनस आएगा, -1 की पावर 3 माइनस इंटू -4 सो +4, -1 की पावर +1 तो कितना आएगा यहाँ पे +2। सो दीज आर माइनर ऑफ दिस डिटरमिनेंट एंड दीज आर कोफैक्टर्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम नो नीड टू राइट -1 की पावर, डायरेक्टली अपन यहाँ साइन देखेंगे। साइन क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, सो डायरेक्टली राइट प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस इंटू। क्वेश्चन नंबर 2, राइट कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। अब देन दिस इज 3/3 डिटरमिनेंट, यानी हमको 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1, उसके बाद वही सिम्बल्स लगा देंगे हम फटाफट, 1 फिर 0 फिर इसके बाद 4, ऐसे स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा लगा देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे ताकि मिक्स ना हो। अब थोड़ा छोड़ के फिर 3 5 -1, फिर एक लाइन छोड़ के 0 1 2 ताकि मिक्स ना हो गए। सब लोग M11 लिखते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती है। आप चाहे तो इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट्स लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़े सालस आएंगे, बोले क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू। अब कोफैक्टर निकालते हैं तो अपन यहाँ पे साइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन, -1 रेज टू पावर 1 + 1 -1 रेज टू पावर 1 + 2। आप भूल जाओगे, दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि आपको पहले से यहाँ साइन लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब पहले से साइन लगा दो, साइन ऑफ 1 प्लस 0 माइनस, इस तरह से टेबल से चेक करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 3/3 डिटरमिनेंट में क्या होगा, हमेशा अल्टरनेट साइन आएंगे। लेकिन 2/2 में ऐसा नहीं होगा, 2/2 में प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमेशा ध्यान रखना है। फिर आप एक ब्रैकेट्स बना लोगे, अब यहाँ पे अपन सोल्व करके लिखेंगे डायरेक्ट। कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू साइन इंटू माइनर ऑफ 1। अब 1 का माइनर यानी 5 2 जा 10, इसको सोल्व करना है। दिस डिटरमिनेंट, दिस इज 2/2 डिटरमिनेंट। सोल्व कैसे करते हैं, 5 2 जा 10, फिर माइनस साइन आता फार्मूले में, फिर 1 का इंटू -1 से, तो यहाँ -1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, +1।
आफ्टर दिस कोफैक्टर ऑफ 0, तो इसको ऐड करना है। अब किसको? इन चारों को इंटू करना है। 3 इंटू 2 6, फिर माइनस आएगा साइन का, और फिर 0 का -1 से करेंगे तो कितना आएगा? 0। फिर इसके बाद 4, तो इसको सोल्व करना है। सो 3 माइनस 0। अब वही कोफैक्टर ऑफ 3 निकालना है, तो 1 2 3 4 को सोल्व करेंगे। 0 माइनस 4। अब 5 का निकालना है, तो 2 माइनस 0। फिर इसका निकालना अपन को -1 का, तो 1 माइनस 0। फिर निकालना अपन को 0 का, तो 0 माइनस 20। फिर 1 का निकालना है, तो -1 माइनस 12। और फिर निकालना अपन को -1 माइनस 12 हो गया। अब उसके बाद 2 का निकालना है, तो 5 माइनस 0। और बहुत प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो एक जगह गलती होगी पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका आगे। अब इसको सोल्व करके डायरेक्ट ले देंगे। जल्दी से इक्वल टू साइन लगा दो फटाफट। अब डाउन 10 + 1 11 -6 +3 +4 +2 -1 -20 +13 एंड +5। जितने भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वहाँ हम सिर्फ कोफैक्टर ही निकालेंगे, माइनर कहीं भी नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो मीन्स 2 0 1, इवलेट डिटरमिनेंट। अब सेकंड रो से एलिमिनेट करना है, तो फार्मूला क्या होता है? एनी एलिमेंट इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। सो 2 इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। सो 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0 प्लस 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1। यदि आपको मान लो R1 से करना होता तो क्या लिखते हैं? 5 इंटू कोफैक्टर ऑफ 5, 3 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3, 8 इंटू कोफैक्टर ऑफ 8। यदि C1 से करना होता तो क्या करते हैं? 5 इंटू कोफैक्टर ऑफ 5, 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 एंड 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1। तो अभी हमको किससे करना? R2 से। सो 2 इंटू, अब हाउ कैन यू फाइंड कोफैक्टर ऑफ 2? पहले अपन साइन लगाते हैं। तो साइन कहाँ से मिलते हैं? इस टेबल से। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 2 का साइन क्या आ रहा? माइनस, तो माइनस आएगा। फिर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है और बाकी एलिमेंट को सोल्व करना है। 3 8 2 3, इन चारों को सोल्व करना है। तो 3 3 जा 9 माइनस 16 प्लस 0 इंटू एनी नंबर 0, तो इसको सोल्व करना ही नहीं, राइट 0 प्लस 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1। अब 1 का कोफैक्टर, तो पहले 1 का साइन माइनस, अब ब्रैकेट में इसको छोड़ना है और इस लाइन को छोड़ना है। तो 5 3 1 2 को सोल्व करना है। 5 2 जा 10 माइनस 3। अब नाउ सिंप्लीफाई। 9 माइनस 16 माइनस 7, तो ये प्लस 7 हो गया। 7 2 जा 14। 10 माइनस 3 7, तो माइनस 7। So answer is 7. Next problem. Using cofactor of element of third column, evaluate determinant. This equal to, this time column 3. This is C3. So equal to yz into cofactor of yz plus xz into cofactor of xz plus xy into cofactor of xy. अब नाउ साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस वाई जेड। फर्स्ट साइन, साइन ऑफ वाई जेड पॉजिटिव,
सो प्लस साइन और इन ब्रैकेट एलिमिनेट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करना। अब इसको सोल्व करना है, जेड माइनस वाई प्लस एक्स जेड, साइन क्या आएगा माइनस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, और साइन क्या है प्लस है इसका। सो क्वेश्चन इज ओवर, लेकिन पीछे आंसर फैक्टर्स के टर्म में दे रखे हैं। अगर एग्जाम में कहीं आए कि प्रूव डेट एक्स माइनस वाई माइनस जेड में, देन सिंप्लीफाई, अदरवाइज क्वेश्चन इज ओवर। ओके, मैं सोल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दिस इंटू दिस, सो वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब साइक्लिक ऑर्डर में फैक्टर्स करने का रूल होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर वाई स्क्वायर की, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, देन हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, देन हाईएस्ट पावर ऑफ जेड। तो पहले अपन एक्स की पावर देखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर देर आर टू प्लेसेस पे, एक्स स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर वाई। अब वापिस से वाई और जेड में पहले कौन आता वाई, तो ये टर्म पहले आएगी। तो फर्स्ट राइट माइनस एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर जेड। अब फिर एक्स वाली टर्म, दोनों में एक्स आ रहा है, इसके साथ जेड स्क्वायर और इसके साथ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर पहले आता है जेड से पहले, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। देन राइट रिमेनिंग टर्म्स, अब वाई जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर वाई में पहले कौन आएगा वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब नाउ टेकिंग कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर क्या आएगा वाई माइनस जेड, इसमें कॉमन क्या आ रहा है एक्स, तो अंदर आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस वाई जेड, तो यहाँ मिलेगा y माइनस जेड। अब इसके फैक्टर्स करो, क्या होंगे y प्लस जेड वाई माइनस जेड, यानी इस तीनों में से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। सो टेकिंग कॉमन y माइनस जेड, सो वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में y प्लस जेड, क्योंकि y माइनस जेड तो कॉमन ले लिया है, माइनस वाई जेड। अब फिर से फैक्टर्स करना है, सो y माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब देखो फिर से इजीली एक्स कॉमन आ रहा है इसमें, वाई माइनस जेड, सो माइनस एक्स कॉमन, सो वी गेट एक्स माइनस वाई, दोनों में जेड कॉमन आ रहा है, तो क्या मिल रहा है एक्स माइनस वाई। अब नॉट टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड ऑलरेडी यहाँ पे, अंदर बचा माइनस एक्स प्लस जेड, आई फॉरगॉट प्लीज राइट जेड कॉमन, सो माइनस एक्स प्लस जेड मीन्स जेड माइनस एक्स। सो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे तो करना, अदरवाइज नहीं करना है। इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।